દીવમાં જવાહર નવોદય વિદ્યાલયમાં નેશનલ યુથ પાર્લામેન્ટનો કાર્યક્રમ યોજાયો। આ કાર્યક્રમ દીવ કલેક્ટર ભાનુપ્રભા મેડમની અધ્યક્ષતામાં યોજાયો, જેમાં દીપ પ્રાગટ્ય બાદ પુષ્પગુચ્છથી મહેમાનોનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। ત્યારબાદ નેશનલ યુથ પાર્લામેન્ટનો મુખ્ય હેતુ, તેનું જ્ઞાન અને તેના વિશેનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું। સાથે સાથે વડાપ્રધાન, ગૃહમંત્રી, સ્પીકર, સાંસદ, રૂલિંગ પાર્ટી, વિપક્ષ વગેરે સંસદમાં કેવી ભૂમિકા ભજવે છે અને દેશના હિત માટે એક મંચ ઉપર બેસીને કેવા નિર્ણયો લેવામાં આવે છે તે આબેહૂબ વિદ્યાર્થીઓએ કરી બતાવ્યું। સાથે સાથે દીવ કલેક્ટર ભાનુપ્રભા મેડમે આ પાર્લામેન્ટની પ્રશંસા કરી। સમગ્ર કાર્યક્રમનું નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શન વિદ્યાલયના પ્રિન્સિપાલ પ્રશાંત સાહેબે આપ્યું। આ કાર્યક્રમમાં જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ, શિક્ષણ અધિકારી, કેન્દ્રીય વિદ્યાલયના પ્રિન્સિપાલ ઉપસ્થિત રહ્યા। जोरदार तालियां के प्राचार्य मैडम को पुष्पों से स्वागत करें। राष्ट्रीय स्तर पर जो युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन होता है, उसका आयोजन हमारे स्कूल में हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में मन की बात के अंतर्गत यह प्रस्ताव रखा और सोचा कि हम हमारे युवाओं को ऐसे संसद का आयोजन करवाए जिससे उनको यह ज्ञान हो कि संसद में क्या क्या होता है और उनके जो आंतरिक विचार है, उनकी जो प्रेरणा है, वह बाहर उभर कर आए कि जो समाज में जो समस्याएं हैं वह क्या क्या है, शायद जो वहां पर संसद सभा में बैठे हुए हो उनको पता न हो, तो युवा संसद का आयोजन करके उनकी समस्याओं को सुना जाए। Good morning to all. It's a pleasure for me to welcome the dignitaries of the district. Of course, Honorable Collector Ma'am is here, and it's so kind of it's such a nice gesture on her behalf to take some time out of her busy schedule and to grace this occasion just to encourage the children, probably the would-be political leaders of the nation. I cordially welcome you, ma'am, to the Vidyalaya and to this program. I also welcome our support, constant support, Shri R.K. Singh sir, and my counterpart, Madam Kusumdata Meena from Kendriya Vidyalaya. I welcome you all to this 26th National Youth Parliament being organized today at JNV Diu. I would like to give a brief introduction about this National Youth Parliament. It's a program under the Ministry of Parliamentary Affairs, and in collaboration with Navodaya, this program, this competition is organized. This is the 26th National Youth Parliament competition, ma'am, and it is organized every year in selected JNVs. This year, 11 JNVs from Pune region are organizing this Youth Parliament, National Youth Parliament competition. This video will be recorded and it will be sent for the regional level competition, and based on that, one or two JNVs will be selected that will participate in the national level, and then again from national level, some of the selected JNVs will re-enter this parliament somewhere in New Delhi. JNV और AD के श्री प्रशांत जी और श्रीमती कुसुमलता मैडम, आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए हमारे बच्चों को तैयार किया। और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि शायद 11 स्कूलों में 11 स्कूल
to conduct this. And EU is one of most relevant schools. तो बहुत अच्छी बात है कि इसी बहाने जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने कहा है हमारे बच्चों को पता चलेगा कि आखिर पार्लियामेंट फंक्शन कैसे चलती है ना। माननीय सदस्यगण, राष्ट्रगान के संबोधन के लिए सभी खड़े होंगे। माननीय सदस्य, युवा संसद के इस विशेष सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी की उपस्थिति हार्दिक अभिनंदनीय है। 26वीं युवा संसद की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व नवनिर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञा करेंगे। महासचिव महोदया। सुश्री महिमा राजस्थान राज्य के पाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई है। शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञा के लिए आए। मैं महिमा पाली निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता का ध्यान रखूँगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगी। जय हिंद। I, Bhanu Pratap, having been elected as a member from Junagadh constituency of Gujarat Youth Parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind. इन खिलाड़ियों से प्रेरित होकर भारत की युवा पीढ़ी आगे और भी पदक लाने में अपनी सहभागिता दर्शाएगी। मेरे और पूरे भारत की जनता की ओर से सभी खिलाड़ियों का हार्दिक अभिनंदन देता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए गौरव की बात है कि इस साल भी 2024 पेरिस ओलंपिक में हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर भारत देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। मैं आशा करता हूं कि वे आगे भी अच्छा प्रदर्शन कर हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। मैं अपने और अपने सरकार की ओर से उन खिलाड़ियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सुनकर बहुत गर्व होता है कि हमारे देश के खिलाड़ी विदेश में भी भारत का झंडा फहरा रहे हैं। मैं मेरे और मेरे साथियों की ओर से सभी खिलाड़ियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं सभा में उपस्थित सदस्यों को अपने नए मंत्रिमंडल से अवगत कराना चाहता हूँ। मिस प्रीति, होम मिनिस्टर। मिस धोनिका, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। मिस जयश्री, फाइनेंस मिनिस्टर। मिस्टर काव्या, एजुकेशन मिनिस्टर। मिस्टर शुभ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। मिस निहालिका, लॉ मिनिस्टर। मिस निर्मला, रेलवे मिनिस्टर। मिस प्रिया, हेल्थ मिनिस्टर। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। प्रश्न क्रमांक 101। माननीय वीर, अपना प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा देश में लागू किए गए नए आपराधिक कानून से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को परिचित कराने के लिए समर्पित प्रशिक्षण और संगठितों की आवश्यकताओं को स्वीकार करती है? यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इसके लिए कोई प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा अगर नहीं तो ऐसे प्रशिक्षण सत्रों की योजना न बनाए जाने के क्या कारण है? और अध्यक्ष महोदय जी, क्या नए दंड कानूनों के संबंध में पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए बजट आवंटन अथवा समर्पित संसाधनों का ब्यौरा क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संसद को इस बात से अवगत कराना चाहती हूँ कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (PPRNDA) द्वारा आपराधिक कानून पर विभिन्न स्तर के पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार
तैयार किए। राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रशिक्षण शुरू हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पाठ्यक्रम को उपलब्ध कराने के लिए 31 सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण IGOT के साथ तैयार किया गया है। और इतना ही नहीं, VPRNDA द्वारा नए आपराधिक कानून पर यह प्रशिक्षण मॉड्यूल सभी राज्यों एवं संघ राज्यों के क्षेत्र में उनके संबंधित पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में समान प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए साझा किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस कर्मी और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण के लिए यह अधिकारण सूचनात्मक फ्लायर्स VPRNDA की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। और इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त नए आपराधिक कानून पर प्रशिक्षण सहित पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए निधियों या अनुसंधान संस्थानों का आवंटन एक सतत प्रक्रिया है और इसे वार्षिक बजट से पूरा किया जा रहा है।